Hello students, in today's lecture for research methodology, unit number 4, we will discuss about a parametric test which is quite important from exam point of view or if you are going for any research process. इस पर्टिकुलर टेस्ट का प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा है कि दे सीम्स दैट दिस इज वेरी lengthy test and it requires lots of calculation. Yes, of course there are calculations, but we must understand the importance of this test, why this test is used, and what are various applications of this particular test. From exam point of view, it is one of the important topic from which numerical questions will be asked. So let's start. So we are going to discuss about analysis of variance, that is also known as, or the terminology is used, ANOVA. ANOVA comes from AN is a OVA. So that is analysis of variance. So what is analysis of variance? In this particular test, if data is collected using scale like interval or ratio, that is parametric data, and if we have more than two samples, because if there are two samples, we can go for comparison of mean using t-test. But if number of samples are greater than 2, then their variance are analyzed to compare the population means of each sample. So analysis of variance ANOVA is a technique of testing hypothesis about the significant difference in several population means. Significant difference in several population means that if there are more than two samples, if you want to compare where there is a significant difference in the mean of each sample, then we use analysis of variance. For example, if I consider average percentage of all sections of MBA, which includes semester 2 and semester 4. So in semester 2 there are 2 sections, semester 4 there are 2 sections, so there are total 4 sections, and if I take samples from each section, let's say 10, so I have 4 samples and I want to compare their means. Of course there are chance of variation, and then in this chance of variation can be because of two reasons. The first reason is because different sections have different kind of population, so there can be variation. This is called variation between samples, or variation between groups, or variation between categories. So I have 4 samples, so I have 4 groups or samples or groups, so there can be variation because samples are drawn from different population. Section A can be different from section B. Similarly, 4 semester section A will be different from 4 semester section B.
second difference can be because of in the same sample there is variation. जैसे अगर एवरेज मार्क्स सेक्शन ए का 65% है, तो ये 65% जो एवरेज है, दिस कैन बी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 80% है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 40% है, किसी का 50% है, 50 के रेंज में है, किसी का 70 के रेंज में है, और इन सभी का जब हम एवरेज ले रहे हैं तो वो 65% है. सो देयर कैन बी वेरिएशन विद इन सैंपल्स एंड देयर विल बी वेरिएशन बिटवीन सैंपल्स. दोनों में डिफरेंस समझिए. जब मैं अलग अलग सेक्शन ले रहा हूं, उनके एवरेज में डिफरेंस आ सकता है, दैट इज बिटवीन सैंपल्स और बिटवीन ग्रुप्स, और सेम ग्रुप में भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि सभी का 65% मार्क्स थोड़ी ना है, ये तो एवरेज मार्क्स है, ये तो मीन है. तो वेरिएशन, ये मीन क्यों आया है? क्योंकि वेरिएशन आया है विद इन ऑल स्टूडेंट्स. हर एक स्टूडेंट का सेम परसेंट मार्क्स नहीं है, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग परसेंट मार्क्स है और उनका एवरेज 65%. सिमिलरली सेक्शन बी में हर एक स्टूडेंट का अलग अलग परसेंट है और उनका वेरिएशन 70% है. नाउ आई एम कंपेयरिंग वेरिएंस, तो दो सेक्शन का एवरेज मार्क्स 65% और 70%. तो पहले मैं ये चेक करना चाहता हूं कि 65% और 70% में कोई डिफरेंस है. दूसरा मैं ये चेक करूंगा क्या विद इन ग्रुप जो 65% है उसमें वेरिएशन सैंपल की वजह से आया है. सो दिस इज व्हाट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस डज. In analysis of variance, the total variance in sample data can be on account of two component are, namely variance between the samples and variance within the samples. बात समझ में आ रही है? सेक्शन ए, सेक्शन बी सेकेंड सेमेस्टर, सेक्शन ए, सेक्शन बी फोर्थ सेमेस्टर, ये बिटवीन सैंपल्स हो गए. 4 सैंपल आ रहे हैं तो बिटवीन सैंपल्स हो गए. और विद इन सैंपल सेक्शन ए के जो स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एवरेज मार्क्स, दैट इज विद इन सैंपल. So variance between sample is attributed to difference among the sample means. तो हर एक सैंपल का अपना अपना मीन है, उन मीन का जो डिफरेंस है that is variance between samples. This variance is due to assignable causes. Different section है, different population, different teachers हैं, इसलिए उनमें डिफरेंस आ सकता है. या different subject है, जैसे 4th सेमेस्टर का देखिए different subject है, इसलिए वेरिएशन आ सकता है. दूसरा क्या है? वेरिएंस बिटवीन विद इन सैंपल्स में सेम सेक्शन, सेम स्टूडेंट्स, सेम टीचर, सेम सब्जेक्ट, बट स्टिल देयर विल बी वेरिएशन, बट स्टिल हर एक स्टूडेंट का मार्क्स सेम नहीं है. दैट इज कॉल्ड वेरिएशन विद इन सैंपल. तो हम दो वेरिएशन चेक करते हैं अनोवा के अंदर. जैसे ये एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, लैब में भी किया था और इसको एक्सप्लेन करते समय भी किया था कि एक टायर मैन्युफैक्चरर रॉयल टायर, और वो एवरेज लाइफ ऑफ टायर्स को मेजर कर रहा है. इसमें आप देखेंगे देयर इज ओनली वन सैंपल और सैंपल साइज है 8. इसमें एवरेज लाइफ मेजर हो रहा है, इसके लिए हमने सिंपल टी टेस्ट यूज किया. बट आप अज्यूम करिए इसी तरीके से अगर रॉयल टायर के साथ साथ वी वांट टू कंपेयर लेट्स से एमआरएफ. रॉयल टायर मैन्युफैक्चरर एक एमआरएफ टायर का भी हमें अगर कंपैरिजन करना है तो हमारे पास 2 सैंपल आ गया. अगर हमारे पास 2 सैंपल है सो वी कैन गो फॉर कंपेयर मीन्स ऑफ 2 पॉपुलेशन. दैट इज हम टी टेस्ट यूज कर सकते हैं फॉर 2 पॉपुलेशन और जेड टेस्ट यूज कर सकते हैं. बट इसी केस में अगर रॉयल टायर, एमआरएफ, मिशलिन, गुडईयर ऐसे अलग अलग ब्रांड का हमें कंपैरिजन करना है, अलग अलग ब्रांड का हमें कंपैरिजन करना है,
उस केस में वी कैन नॉट यूज टी टेस्ट। और इसमें भी आप देखेंगे, मैं टायर की बात कर रहा हूं, तो जो टायर होंगे, टायर की बात कर रहा हूं, तो टायर एक खुद एक पॉपुलेशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है। अब इसके टायर के अंदर अलग अलग ब्रांड होने की वजह से, लेट्स से दिस इज पॉपुलेशन, मैं अलग अलग ब्रांड लूंगा, इन सभी ब्रांड का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अलग अलग ब्रांड का अगर देखो, ब्रांड का जो नंबर ऑफ टायर्स है वो सेल्फ पॉपुलेशन फॉर द गिवन ब्रांड। बट अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ टायर्स में क्या डिफरेंस है, सो आई हैव टू कंसिडर ब्रांड नंबर 1, ब्रांड नंबर 2 और ब्रांड नंबर 3। इनके मीन्स को हमें कंपेयर करना है। क्या मीन 1 का, मीन 2 का, मीन 3 का मीन, या ओवरऑल जो मीन है वो पॉपुलेशन मीन का है, या हर एक जो मैंने सैंपल लिया हर एक ब्रांड का, क्या उनका मीन एक दूसरे से अलग है? दिस इज व्हाट वी वांट टू कंपेयर। तो हम क्या करने जा रहे हैं अनोवा के अंदर, ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3, ये 3 कैटेगरी हो गई, ये 3 ग्रुप हो गए। इन तीनों ग्रुप में डिफरेंस आया क्या, वो हम देखेंगे। दूसरा, सेम ब्रांड के अंदर डिफरेंस आया क्या, जो हमने यहाँ किया था सिंगल ब्रांड था, और उनमें हमने डिफरेंस चेक किया कि क्या एवरेज लाइफ ऑफ टायर 40,000 किलोमीटर है। ये हमने उसी ब्रांड के टायर का मीन चेक किया। अब इसी तरीके से अगर हम 3 अलग अलग ब्रांड लेते हैं, तो तीनों ब्रांड के टायर का मीन क्या एक दूसरे से डिफरेंट है? उसके बाद सेम ब्रांड के अंदर क्या डिफरेंस है? दिस इज व्हाट अनोवा डज। सो अनोवा के अंदर हम 2 तरीके से इसको स्टडी करेंगे। देयर आर 2 वेज, वन इज वन वे अनोवा एंड अनदर इज 2 वे अनोवा। वन वे अनोवा वेयर देयर इज ओनली वन वेरिएबल, जैसे यहाँ पे एवरेज लाइफ ऑफ टायर, एक ही वेरिएबल है, लेकिन सैंपल बहुत सारे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, एवरेज लाइफ ऑफ टायर के साथ एवरेज साइज ऑफ टायर चेक करना चाहें, है ना, वियर एंड टियर ऑफ टायर चेक करना चाहें, तो यहाँ पे हम अलग अलग वेरिएबल भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ अलग अलग सैंपल भी ले रहे हैं। मीन्स देयर आर मोर देन 2 सैंपल्स, ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3, उसके साथ साथ मोर देन 1 वेरिएबल, एवरेज लाइफ ऑफ टायर, देन एवरेज साइज ऑफ टायर, देन वियर एंड टियर ऑफ टायर, है ना। तो वेरिएबल भी अगर ज्यादा हो तो हम 2 वे अनोवा और मनोवा इस तरीके से हायर वेरिएंस को हम चेक करेंगे। राइट नाउ हम 1 वे अनोवा करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में 2 वे अनोवा को करेंगे। सो 1 वे अनोवा इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीटली रैंडमनाइज्ड डिजाइन। Completely randomized design is nothing but taking samples randomly from different populations, or we have different samples. So completely randomized design contains only one independent variable with 2 or more treatment levels or classifications. 2 or more treatment levels is nothing but 2 or more samples or 2 or more groups. Suppose if k samples are nothing but k categories, or k samples are nothing but k number of groups are being analyzed by researcher, then null hypothesis and alternate hypothesis. Null hypothesis will be mean of population, mean of each population is same. जो हमने अलग अलग सैंपल लिए, k सैंपल लिए, हर एक सैंपल का जो मीन है वो इक्वल है, दैट इज नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि जो सैंपल मीन है वो डिफरेंट। सैंपल मीन डिफरेंट मतलब किसी एक पॉपुलेशन का मीन डिफरेंट है या सभी पॉपुलेशन का मीन डिफरेंट है, दिस इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और उसको चेक करने के लिए जो कैलकुलेशन होगा वो टोटल वेरिएंस चेक करेंगे, टोटल एरर चेक करेंगे या टोटल वेरिएंस चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स।
which is equal to sum of squares within columns. This is nothing but checking variance within columns and checking variance between columns. SSC is sum of squares between columns and SSE is sum of squares within samples. दोनों का क्या मतलब है? अगर हम वेरिएंस चेक कर रहे हैं बिटवीन सैंपल्स तो SSC है, और सेम सैंपल के अंदर वेरिएंस चेक कर रहे हैं दैट इज विद इन तो SSE है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो SST टोटल सैंपल. सो SST इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज sum of square between columns plus sum of squares within samples. So this is what we are going to do. और इसका एक समरी टेबल बनाना है. समरी टेबल बनाने से पहले हम कैसे पता करेंगे कि वेदर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. हमने वेरिएंस तो चेक करिए, पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ कैसे पता करेंगे? फॉर दैट अनोवा के अंदर वी गो फॉर एफ टेस्ट. एफ स्टैटिस्टिक्स को हम चेक करते हैं. सो इन केस ऑफ अनोवा एफ वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग mean sum square between columns with mean sum square within column. ठीक है, उनका मीन निकालेंगे. जो हमने वेरिएंस निकाला उसका मीन निकालेंगे और इन दोनों का कंपैरिजन कर देंगे. इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो एक वैल्यू आएगी. दैट वैल्यू इज कॉल्ड एफ वैल्यू. सो एफ वैल्यू कैसा है? जो हमने पिछले स्लाइड में SSC और SSE निकाला, दैट इज वेरिएंस विद इन कॉलम और वेरिएंस बिटवीन कॉलम और वेरिएंस विद इन कॉलम निकाला. उनका हम मीन निकाल लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से. और ये जो मीन है इनका जब हम रेशियो लेंगे तो एफ वैल्यू आएगी. दिस इज माई कैलकुलेटेड वैल्यू. और मैं टैबलेटेड वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू जो टेबल से निकालूंगा उसके साथ इस वैल्यू को कंपेयर करूंगा, जिसके बेसिस पे आई विल गो फॉर कंक्लूजन. आई विल गो वेदर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. सो द एफ स्टैटिस्टिक्स फॉलो एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद k minus 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. k क्या था? k था नंबर ऑफ सैंपल्स, नॉट सैंपल साइज. दिस इज नंबर ऑफ सैंपल्स. तो नंबर ऑफ सैंपल्स -1 करेंगे, दिस विल गिव मी डिग्री ऑफ फ्रीडम कोरिस्पॉन्डिंग टू MSC. MSC क्या है? मीन सम स्क्वायर बिटवीन कॉलम. और MSC कैसे है? MSC कैसे है? जो हमने SSC निकाला था दैट इज सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, उसको हमने डिवाइड किया डिग्री ऑफ फ्रीडम k -1 से, तो हमें मिला MSC. इसी तरीके से जो न्यूमरेटर में, इसी तरीके से n - k. n क्या है? सैंपल साइज. तो सैंपल साइज माइनस नंबर ऑफ सैंपल्स, सैंपल साइज माइनस नंबर ऑफ सैंपल करेंगे. सो दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विदिन कॉलम या विदिन ग्रुप वाला जो है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा. दैट इज SSE का डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा. उस SSE के को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे, n - k से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा MSE. और इन दोनों का रेशियो हमें F स्टैटिस्टिक्स मिलता है, जिसके बेसिस में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कब करेंगे? फॉर गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, द रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस, इफ f calculated value is greater than f critical value, fu is nothing but f critical value. तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा हो जाता है तो रिजेक्शन रीजन में जाएगा. यहां से देखिए, दिस इज माई क्रिटिकल वैल्यू. ये क्रिटिकल वैल्यू है. फॉर द गिवन अल्फा मैं एफ वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और ये जो एफ वैल्यू कैलकुलेटेड है और जो क्रिटिकल वैल्यू हमें टेबल से मिलेगा एट गिवन अल्फा लेवल, एट गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर एफ की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है तो इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आया तो रिजेक्ट हो गया, और अगर उसकी वैल्यू इससे कम है तो विद इन एक्सेप्टेड रीजन में जाएगा. तो इससे null hypothesis will be accepted if the critical value is greater than calculated value, and null hypothesis is rejected if
कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। और ये ग्राफ आप ड्रॉ करिए, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट ड्रॉ करेंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसका एक समरी टेबल बनता है जो हम लास्ट में दिखाएंगे, जिसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। समरी टेबल देखिए, सोर्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कहाँ हो रहा है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन हो सकता है बिटवीन कॉलम्स दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट, और विद इन कॉलम्स दैट इज कॉल्ड एरर, और इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल। देखिए फिर से देखिए, जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है, जो वेरिएशन हो रहा है, जो डिफरेंसेस क्रिएट हो सकता है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट सैंपल, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन बिटवीन कॉलम्स, और वेरिएशन आ सकता है सैंपल्स के बीच में ही, दैट इज कॉल्ड विद इन कॉलम्स। बिटवीन कॉलम्स को ट्रीटमेंट कहते हैं, विद इन कॉलम्स को एरर कहते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल आएगा। सो एसएससी इज sum of squares, this is nothing but variance, sum of squares between columns, sum of squares within columns, and total sum of squares. डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलम है, मतलब इतने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स -1 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एसएससी। टोटल सैंपल साइज माइनस नंबर ऑफ सैंपल्स इज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर विद इन कॉलम, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो n-1 आता है, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टोटल एरर। MSC कैसे निकल रहा है, MSC इज मीन सम स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स, वो आ रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स SSC डिवाइड बाय k-1। तो जो हम SSC यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे, MSC आ गया। इसी तरीके से MSE कैसे आया, SSE को n-k से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा MSE। अब MSC को MSE से डिवाइड कर देंगे तो F कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज F स्टैटिस्टिक्स या F कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जो भी आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे उसमें ये समरी टेबल बनाने से ही F कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। विशाल फूड्स लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्किट्स। द कंपनी हैज लॉन्च्ड न्यू ब्रांड इन 4 metros, Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. After 1 month, the company realizes that there is a difference in retail price per pack of biscuits across the cities. Before the launch, the company had promised its employees and newly appointed retailers that the biscuit would be sold at uniform price in the country. The difference in price can be tarnished the image of the company. In order to make a quick inference, the company collected data about the price from six randomly selected stores across the 4 cities based on the sample information. The price per pack of the biscuit is given in the table. ये टेबल दिया। अब इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसको समझिए, यहां से हमें इंपॉर्टेंस ऑफ अनोवा आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 मेट्रोज लिया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो ये मेरे 4 कैटेगरीज हो गए या 4 सैंपल्स हो गए, अलग अलग लोकेशन, ठीक। और चेक क्या कर रहे हैं, रिटेल प्राइस पर पैक ऑफ बिस्किट। सो रिटेल प्राइस इज माई वेरिएबल, क्योंकि ये प्राइस है, क्योंकि प्राइस इज अ मेजरेबल टर्म, तो ये पैरामेट्रिक के अंदर आता है। एंड सिंस देयर आर मोर देन 2 सैंपल, इसलिए हम टी टेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे, वी हैव टू गो फॉर अनोवा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वेदर द प्राइस ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ बिस्किट पर पैक इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द सिटी, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हर एक सिटी, दिल्ली से 6 सैंपल लिए,
सैंपल्स 6, तो सैंपल साइज फॉर दिल्ली 6। मुंबई यहां से भी 6 लिए, कोलकाता यहां से 6 लिए, चेन्नई से भी 6 लिए। सैंपल्स 6 लेने का मतलब क्या, हर जगह बिस्किट के प्राइस को मेजर किया, हर जगह बिस्किट के प्राइस का सैंपल लिया। सो ये मेरे 4 कैटेगरी हो गए, ये 4 कैटेगरी को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और ये सैंपल्स हो गए, सैंपल्स हो गए। अब हमें चेक करना है कि क्या जो प्राइस पर पैक बिस्किट है क्या इनमें वेरिएशन है। तो अब ये वेरिएशन देखिए कैसे चेक करूंगा, मैं वेरिएशन चेक करूंगा क्या ये सिटी वाइज डिफरेंट है, दैट इज SSC, दैट इज विदिन कॉलम, बिटवीन कॉलम, दैट इज बिटवीन कॉलम, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनके प्राइस में कोई डिफरेंस है, दैट इज बिटवीन कॉलम। इसके अलावा मैं चेक करूंगा क्या अलग अलग जो रिटेलर से मैंने प्राइस लिए क्या उनमें वेरिएशन आया, दैट इज विदिन कॉलम। So between column is Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. Within column is only मुंबई के अंदर जो अलग अलग रिटेलर से जो मैंने प्राइस लिए क्या उनमें कोई वेरिएशन है, क्योंकि कंपनी ने तो रिटेलर को बिस्किट दे दिया, पर रिटेलर हर एक सिटी में अलग अलग प्राइस पे बेच सकता है और सेम सिटी के अंदर भी अलग अलग प्राइस पे बेच रहा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक, दैट इज व्हाई ANOVA will come into picture. Use one-way ANOVA to analyze the significant difference in the price. एक 95% as confidence level. पहला स्टेप, सेट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होगा, पॉपुलेशन मीन ऑफ ईच सिटी इज सेम। अल्टरनेट क्या होगा, पॉपुलेशन मीन ऑफ ऑल सिटीज आर डिफरेंट, या किसी एक सिटी का डिफरेंट है। So null hypothesis mu1 equal to mu2 equal to mu3 equal to mu4, that is the population mean of each city is same. Alternate क्या बचा, all means are not equal or mean of any one city is different. Step 2, determine appropriate statistical test. तो ANOVA यूज हो रहा है क्योंकि पहला ये तो पैरामेट्रिक है, क्योंकि हम प्राइस मेजर कर रहे हैं, पैरामेट्रिक है। दूसरा मोर देन 2 सैंपल्स है, more than 2 samples में will go for ANOVA. So appropriate test is F test statistics in one-way ANOVA, और वो कैसे मेजर होगा, MSC upon MSE. MSE is mean sum square between column upon mean sum error within column. mean sum square column है, mean sum square mean square error. Error is nothing but within column. Step 3, set the level of significance, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.05. Step 4, set the decision rule. तो decision rule ये है कि at LOS at 0.05 if F calculated value is greater than F critical value, reject null hypothesis. तो अगर F calculated value जो हम स्टेप नंबर यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये वाली वैल्यू अगर जो क्रिटिकल वैल्यू जो टेबल से दिया जाएगा या फिर जो टेबल से हम लोग चेक करेंगे या फिर क्वेश्चन में दिया जाएगा, उससे अगर ज्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, एल्स एक्सेप्ट। अब एफ क्रिटिकल की वैल्यू 3.10 आई। अब ये 3.10 कैसे आई वो देखते हैं। क्रिटिकल वैल्यू 3.10 ये क्वेश्चन में दिया होगा या फिर आप ये टेबल से निकालना सीखेंगे। तो मैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, एक न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर कैसे मिला था, k-1। k क्या है, k कैटेगरी, कितनी कैटेगरी, 4 सिटी है, 4, सो k is 4 -1 is 3। और डिनोमिनेटर दैट इज विदिन कॉलम का कैसे मिला था, टोटल साइज सैंपल माइनस k, n माइनस k था। n क्या है, 4 सिटीज में हर एक सिटी से 6 लिया है, तो 6 into 4, तो टोटल सैंपल साइज इज 24 और कितनी कैटेगरी है, 4, तो 24 - 4 is 20। वैसे ये 20 कैसे है, n माइनस k से। n क्या है, टोटल सैंपल साइज कितना है, 24। पीछे वाले टेबल में आप काउंट करेंगे कितने सैंपल साइज है, तो 24। और कितनी कैटेगरी है, k कितना है, 4, तो 24 - 4 is 20। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर आ गया। और इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू कैसे आएगी,
देखिए ये आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, तो कैलकुलेट द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन अनोवा का। इसमें देखिए दीज आर न्यू वन और न्यू टू। न्यू वन और न्यू टू क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक न्यूमरेटर का है, एक डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3, और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 20। 3 और 20 था, तो 3 हो गया न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का है 20, तो 20 और 3, 1 2 3, ये थर्ड, और 20 ऊपर से नीचे 20, तो 3.1। तो 3.1 इज द क्रिटिकल वैल्यू। न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्रिटिकल वैल्यू यहां पे मिल जाएगी 3.1। सो दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली। क्रिटिकल वैल्यू आई 3.1। स्टेप 5 इज data is collected and given. Step 6 is analyze the data. Analyze the data, थोड़ा ध्यान देंगे, लेंदी दिखेगा बट बहुत ही आसान है। ये हमारे पास टेबल था, ये टेबल हमें दिया गया था, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का ये टेबल दिया गया था। क्या करना है? ये सभी टेबल में इनको ऐड कर देना है, सैंपल का एडिशन कर देना है। 132 यहां पे ऐड करेंगे तो 117, ये 132, ये 117.5, 106, 123, दैट इज विद इन कॉलम, जो कॉलम वाइज है उनका एडिशन कर दिया, दैट इज T1, T2, T3, T4। अब क्या करना है? हर एक कॉलम का मीन निकाल लेना है। x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार मीन निकाल लेना है। तो मीन कैसे आएगा? 132 डिवाइड बाय 6, है ना, 6 सैंपल साइज है और 132 टोटल है, तो इनका मीन कितना आया? 22। इस तरीके से इन सभी का एडिशन करेंगे। इन सभी का एडिशन कितना है? 117.5, और कितना सैंपल साइज है? 6, तो आएगा 19.58। इसी तरीके से 106 डिवाइड बाय 6 इज 17.67। इनका एडिशन किया 123.5 डिवाइड बाय 6 इज 20.58। तो हमने कॉलम वाइज ऐड कर दिया और उनका एवरेज ले लिया, दैट इज 22, 19.58, 17.67, 20.58। तो ये आ गया बिटवीन कॉलम का मीन, बिटवीन कॉलम का मीन आ गया, ठीक है। ये निकाल लिया। कैसे किया? कॉलम वाइज इस टेबल को अरेंज कर लेना है और सभी का एडिशन कर देना है नीचे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल कर देंगे तो हमें मीन मिल गया, दैट इज कॉलम वाइज मीन। अब क्या करना है? देखिए n1, n2, n3, n4 इक्वल टू 6 है ना। n1, n2, n3, n4 इज 6 इज नथिंग बट सैंपल ऑफ ईच कैटेगरी, सैंपल साइज ऑफ ईच सैंपल इज 6। अब यहां देखिए एक ग्रैंड टोटल निकालेंगे, ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल इज नथिंग बट, अगर आप पूरे जितना भी सैंपल है इन सभी सैंपल को ऐड कर दो तो ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो कैसे कर सकते? दूसरा तरीका क्या है? आपने ऑलरेडी यहां पे 132, 117, 106, 123.5 ऐड किया है, इन सभी को वापस ऐड कर दो, दैट इज T1, T2, T3, T4। सो T1, T2, T3, T4 करेंगे 132 प्लस 117.5 प्लस 106 प्लस 123.5, तो हमें आ जाएगा 479। दिस इज ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल निकाल लिया, ठीक है। स्टेप वाइज है, देखिए पहले स्टेप में आपने कॉलम वाइज टोटल निकाला, इन कॉलम वाइज टोटल को ऐड कर दो तो ग्रैंड टोटल, ठीक। अब ग्रैंड टोटल का मीन दैट इज कॉल्ड ग्रैंड मीन, ग्रैंड टोटल का मीन दैट इज कॉल्ड ग्रैंड मीन। तो सभी मीन को ऐड करके डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 क्यों? डिवाइड बाय 4 क्यों? डिवाइड बाय 4 इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी कितना है? 4। तो ग्रैंड टोटल को डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैटेगरी या नंबर ऑफ सैंपल कर देंगे तो हमें ग्रैंड मीन मिल जाएगा, दैट इज 19.96। आ गई यहां तक। अब देखिए पहला हम करेंगे वो हमें समरी टेबल बनाना है। समरी टेबल के लिए एसएससी की जरूरत है। तो एसएससी इज सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स, ठीक है। तो बिटवीन कॉलम्स मतलब इज देयर एनी डिफरेंस और इज देयर एनी वेरिएशंस बिटवीन
सैंपल्स, सैंपल के बीच में वेरिएशन वो कैसे पता चलेगा? ग्रैंड टोटल से, ग्रैंड मीन से पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक सैंपल का एसएससी में हर एक सैंपल का डिफरेंस निकालेंगे और ऐड कर देंगे। देखिए कैसे किया। 6 क्या है? ये देखिए यहां से ये है, ये रिलेशन है, दिस इज रिलेशन टू कैलकुलेट एसएससी। कैसे निकाला है? समेशन ऑफ कॉलम वाइज, समेशन ऑफ जे टू के। जे क्या है? कॉलम 1 टू के कितना है? 4, 1 टू के से एन क्या है? सैंपल साइज। जे क्या है? कौन सा कॉलम है? और एक्स जे माइनस एक्स जे है जो है दिस इज मीन ऑफ ईच कॉलम माइनस ग्रैंड मीन, उसका स्क्वायर। क्या हो रहा है यहां देखिए, सैंपल साइज फर्स्ट कॉलम का मैं ले रहा हूं, सैंपल साइज 6 है, ठीक। अब फर्स्ट कॉलम का मीन कितना है? देखिए 22, देखिए 22 है, फर्स्ट कॉलम का मीन 22, फर्स्ट कॉलम का मीन दिस इज 22। So 22 minus grand mean 19.96. So sample size n कौन से? फर्स्ट कॉलम का उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ उस कॉलम का मीन माइनस ग्रैंड मीन और उसका स्क्वायर। सो 22 माइनस 19.96 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड कॉलम में आ रहे हैं 6 इज सैंपल साइज फॉर सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस किसका? 19.58। 19.58 क्या है? मीन ऑफ सेकेंड कॉलम। 19.58 इज मीन ऑफ सेकेंड कॉलम माइनस ग्रैंड मीन, इसका स्क्वायर प्लस 6 इंटू मीन ऑफ थर्ड कॉलम माइनस ग्रैंड मीन स्क्वायर इंटू 6 इंटू मीन ऑफ फोर्थ कॉलम माइनस ग्रैंड मीन का स्क्वायर। और इनको जब हम ऐड कर रहे हैं 59.71, दिस इज माई एसएससी। बहुत आसान है। क्या किया? हर एक कॉलम वाइज डिफरेंस देख रहे हैं, कॉलम वाइज वेरिएशन देख रहे हैं और वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ सैंपल। तो सैंपल साइज मल्टीप्लाई बाय उस पर्टिकुलर कॉलम का मीन माइनस ग्रैंड मीन, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक। ये आ गया एसएससी। अब एसएसई क्या करना है? एसएसई में जो नेक्स्ट निकालना है वो तो विद इन निकालना है ना, विद इन कॉलम। विद इन कॉलम के लिए देखिए क्या हर एक सैंपल में वेरिएशन आया है? किसके रिस्पेक्ट में? इस कॉलम में। इस कॉलम का मीन कितना है? 22। क्या फर्स्ट सैंपल और जो मीन है इनमें कोई डिफरेंस है? सेकेंड सैंपल और मीन में कोई डिफरेंस है? थर्ड सैंपल और मीन में कोई डिफरेंस है? फोर्थ सैंपल मीन में कोई डिफरेंस है? इसी तरीके से हर एक कॉलम के विद इन सैंपल के मीन का डिफरेंस चेक करना है, दैट इज एसएसई। सो थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन, बट लॉजिकली समझिए, स्टेप वाइज समझिए। तो हम आगे जाते हैं, एसएसई कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल्स कैसे करना है? पहले तो यहां देखिए, पहले तो हर एक कॉलम के अंदर का वेरिएशन चेक करना है और फिर सभी को ऐड कर देंगे। क्या? xij माइनस xj होल स्क्वायर, मतलब हर एक कॉलम में हर एक सैंपल का उस कॉलम के मीन का वेरिएंस चेक करना है और फिर सभी को ऐड कर देना है। समझते हैं क्या किया गया? जैसे यहां पे फर्स्ट कॉलम लिया, फर्स्ट कॉलम का मीन कितना है? 22। फर्स्ट कॉलम का मीन 22 है ना। यहां देखिए एक्स जे जो है दिस इज मीन ऑफ ईच कॉलम। फर्स्ट कॉलम का मीन 22, ठीक। अब उस कॉलम में जितने भी सैंपल हैं, उस कॉलम में पहला कॉलम दिल्ली के अंदर जितने भी सैंपल है, पहला है 22, दूसरा सैंपल है 22.5, तीसरे सैंपल का मेजर है इसी तरीके से, और आखिरी सैंपल का मेजर है 6 सैंपल का मेजर है 21.5। तो देखिए क्या किया, 22 माइनस मीन स्क्वायर प्लस 22.5 माइनस मीन स्क्वायर प्लस जो भी है प्लस 21.5 माइनस मीन स्क्वायर।
ये आ गया फर्स्ट कॉलम का। देखिए क्या किया, हर एक फर्स्ट कॉलम में जितने सैंपल हैं, हर एक सैंपल का उस कॉलम के मीन का डिफरेंस या वेरिएशन चेक कर लें। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में आएंगे। सेकंड कॉलम का मीन कितना है? 19.5। ग्रैंड मीन की बात नहीं हो रही, मीन की बात हो रही है। उस कॉलम का मीन कितना है? 19.58, 19.58, 19.58। और उस कॉलम में जो भी सैंपल है 19, सो 19 माइनस 19.58 स्क्वायर, 19.5 माइनस 19.58 स्क्वायर। इसी तरीके से जाते जाते 21 जो सिक्स्थ है, 21 माइनस 19.58 का होल स्क्वायर। यह गया सेकंड कॉलम का। इसी तरीके से थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम का करेंगे और सबको ऐड करते जा रहे हैं। देख रहे हैं, सभी को ऐड करते जा रहे हैं। तो ये जो सेकंड है, दिस इज एडिशन। पहले तो हर एक कॉलम में कॉलम के अंदर वेरिएशन चेक कर लेना है और फिर सभी को ऐड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा SSE। ठीक है, तो इन सभी का वेरिएशन को ऐड कर देंगे तो 9.25 ये इन सभी को कैलकुलेट करके आया। यही एक लेंथी पार्ट था, बाकी सब छोटा है। ये आ गया। अब हमारे पास SSE आ गया, SSC आ गया है, SSE आ गया। अब MSC निकालना है, मीन स्क्वायर विद इन कॉलम, जो हमें समरी में लिखना है। मीन स्क्वायर विद इन कॉलम कैसे निकलेगा? SSC डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। SSC ऊपर निकाला, दैट इज बिटवीन कॉलम, डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे? कितने नंबर ऑफ सैंपल है? -1। कितने नंबर ऑफ ग्रुप है? -1। कितने नंबर ऑफ कैटेगरी है? -1। तो 59.71 डिवाइड बाय 4 -1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 19.9 इज माई MSC। अब निकालते हैं MSE। MSE क्या है? मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर कैसे आएगा? SSE दैट इज सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकला? N क्या है? टोटल नंबर ऑफ सैंपल माइनस नंबर ऑफ कैटेगरी। सो कैटेगरी कितने हैं? 4। सैंपल टोटल कितना है? 24 माइनस 4 दैट इज 20। तो 9.25 डिवाइड बाय 20 इज 0.46 और इससे हमें मिल जाएगा F की वैल्यू। F की वैल्यू क्या है? MSC डिवाइड बाय MSE। सो 19.9 डिवाइड बाय 0.46 करेंगे तो 43.03 मेरा आ गया क्या? F कैलकुलेटेड वैल्यू। अब इसका समरी टेबल बना लो। समरी टेबल देखिए, सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन कॉलम और विद इन कॉलम, और इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल। SSC हमने निकाला, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम, फिर सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन कॉलम, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल। डिग्री ऑफ फ्रीडम K माइनस, और ये क्या है? N माइनस K, और ये N माइनस 1। तो ये हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। MSC कैसे मिलेगा? SSC डिवाइड बाय SSC डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज 59.7 डिवाइड बाय 3, 19.9। MSE कैसे आएगा? SSE डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.46, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, MSC को MSE से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू। और क्रिटिकल वैल्यू तो टेबल से हमने देखा था 3.1, तो क्रिटिकल वैल्यू 3.1 है। ये जो वैल्यू है ये कितना है? 3.1 3.103। दिस इज माय क्रिटिकल वैल्यू। और कैलकुलेटेड वैल्यू 43.03। 43.03 कहां फॉल करेगा? यहां कहीं होगा। 43.03 यहां कहीं आ रहा है। कहां जा रहा है? रिजेक्शन रीजन में जा रहा है, रिजेक्शन रीजन में। देयरफॉर नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। देखिए कंक्लूजन क्या है? एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, या एट 0.05 LOS, या एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, F calculated value is greater than F critical value, that is 43.03 is greater than 3.10. So null hypothesis is rejected. Thus there is sufficient evidence to conclude that
there is a significant difference in prices across 4 cities. This is how we can solve numericals related to analysis of variance, that is in two-way ANOVA. Now, one-way ANOVA. In next video we will discuss about two-way ANOVA. One-way ANOVA, two-way ANOVA में difference है with respect to variable. One-way ANOVA में one variable है, two-way ANOVA में more than two variable. सैंपल साइज भी 2 से ज़्यादा है और वेरिएबल भी 2 हैं, उस केस में हम टू-वे ANOVA में जाएंगे. आई होप आपको समझ में आया. इफ देयर इज एनी डाउट, प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक. प्लीज आस्क क्वेश्चंस, मे बी इन व्हाट्सएप ग्रुप और within YouTube channel itself. Thank you very much.